If you have to give a 3-step formula to avoid income tax litigation, क्या होंगे वो मैजिकल 3-step formula? बेसिकली आपको पता ही है कि मोदी गवर्नमेंट जब से आया है वो कोशिश कर रहा है कि कैश ट्रांजैक्शंस कम हो जाए। Let's say कि if you are a CEO of a group companies, multiple group बड़ा group है, तो what data और KPI should be a part of your monthly MIS? हाँ, तो many businessmen are not aware that there are so many notice alert softwares available in the market. So what are the 3 common mistakes that professional makes when it comes to handling litigation practices? स्टेक्स में देखा जाए तो बहुत बार जूनियर्स आते हैं, तो मैं देखता हूँ कि उन्होंने जो टेक्निकल गैप्स रहते हैं नोटिसेस में। Welcome to Finance with Rohan, the show where we decode complex finance and tax topics so that it makes sense and you can take action on that. I'm your host, Rohan Mehta. We are diving into a topic which normally gives businessmen sleepless night, tax litigation. And joining with me is someone who has seen this from inside and outside, CA Rajat Agarwal. He is a leading tax expert with years of experience representing client as well as income tax department. He is also an author of his book Winning Income Tax Litigation, a practical guide that shaped the insight and strategy from years of his hands-on experience. Thank you, Ronji. It's my pleasure, and thank you so much for inviting me to your show. My pleasure. So today we will discuss about how to avoid tax litigation, what to do when you face a tax litigation or an income tax notice, and what is the importance of having right consultant when you face a tax litigation. We will turn our mic toward our professionals where we will ask Rajat ji to share his professional insight that can help professionals like me and you around to take their practice to the next scale. So, whether you are a business owner or a tax consultant, we have something for you in today's podcast. Stay till the end for a wonderful surprise. So, Rajat ji, we'll start with our questions. We'll start with a very basic question. When you hear the word litigation, normally लोग पैनिक कर जाते हैं, Correct. ठीक है? So let's start by simplifying what is litigation. Actually, litigation क्या है? Litigation is whenever there's any mismatch in the records of income tax department and they issue a notice to the assessee or the taxpayer, they need to uh, tell the people that tell the assessee that AO that this is the reconciliation they have already made. They need to justify their records and with the help of supporting documents. And if they are unable to do that, and if the assessing officer is not convinced, then they issue a huge demand notice, and then the litigation starts. And then the first appellate authority is a CIT appeal before we have to file appeal for defending those huge demands. Second appellate authority is tribunal. Third is High Court. Fourth is Supreme Court. This is the long path of litigation. And the thing which you're talking about, uncertainty, which you're talking about why people are not liking litigation, why they're afraid of litigation, it's the reason is uncertainty. जैसे जैसे अगर हम लोग बोलें कि इंसान मरने से क्यों डरता है, इसलिए डरता है कि लाइफ आफ्टर डेथ क्या है, वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट। देयर इज सो मच अनसर्टेनिटी। अब ऊपर जाके अगर आपको कोई बोल दे कि आपको अपने दादा दादी मम्मी पापा मिलने वाले हैं और आप अपना फिर से फैमिली इंजॉय करने वाले हैं और वहाँ स्वर्ग है, ये है वो है, तो अनसर्टेनिटी खत्म। जहाँ अनसर्टेनिटी खत्म वहाँ टेंशन खत्म। तो चूंकि मैं एक इनकम टैक्स लिटिगेशन में मैंने 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस होल्ड किया है, सो आई एम अवेयर कि व्हाट आर द स्टेप्स टुवर्ड्स लिटिगेशन, कौन से नोटिस में क्या रिप्लाई देना है। चूंकि मुझे आगे का स्टेप्स पता है तो मेरे लिए कोई टेंशन नहीं है। और असेसी और टैक्स पे क्यों डरता है? क्योंकि उसको कुछ पता नहीं है क्या होगा आगे। अब किसी का तबीयत खराब है तो डॉक्टर रिपोर्ट देख के बोल देता है हाँ हाँ आप ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट, पेशेंट डरा हुआ है। तो वही केस लिटिगेशन के साथ है कि चूंकि बिजनेसमैन को, टैक्स पेयर को पता नहीं है आगे क्या होने वाला है, इसलिए वो डर जाते हैं। और हम लोग वहाँ हैं गाइड करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है आगे क्या होगा, तो हम लोग डरते नहीं हैं। ये है पूरा किस्सा अनसर्टेनिटी और डरने का।
सो अनसर्टेनिटी है, बट आपको रास्ता पता है, आपके क्लाइंट्स को डरने की ज़रूरत नहीं। Yeah, when clients have good consultants with them in their team, तो फिर clients को क्या डरना? Clients का काम है अपना एक अच्छा टीम बनाना, that's it. और वो बनते बनते बन ही जाता है, आज नहीं तो कल, if client is very serious about his work. ग्रेट। तो आपने यहाँ पे कहा कि स्टार्टिंग के फाइलिंग के टाइम पे अगर कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, कुछ रॉन्ग रिपोर्ट हो जाती है, उसकी वजह से दैट इज़ अ ट्रिगर पॉइंट फॉर लिटिगेशन। कैन यू गिव एन एग्जांपल जहाँ और एक ट्रिगर पॉइंट है। हुँ, हाँ, और एक ट्रिगर पॉइंट है, जैसे कि आपको पता ही है कि इतने सारे गवर्नमेंट के अलग अलग रिपोर्टिंग अथॉरिटीज़ है। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स एक रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, जीएसटी एक रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, बैंक्स आर रिपोर्टिंग अथॉरिटीज़। तो अलग अलग रिपोर्टिंग अथॉरिटी ने, जैसे फॉर एग्जांपल जीएसटी टर्नओवर है आपका 21 करोड़, इनकम टैक्स में टर्नओवर है आपका 20 करोड़। तो अब वो 1 करोड़ आपने क्यों नहीं दिखा इनकम टैक्स में, आपके पास नोटिस आएगा, आप उसको एक्सप्लेन करो अच्छे से। अगर आपका जेन्युइन है तो आप रिको बना के रखे हो तो वो रिको दिखाओ। और आजकल तो इनकम टैक्स पोर्टल में पहले से ही मिसमैचेस के डिटेल आने लग गए हैं, जो बहुत सारे टैक्स पेयर्स को पता ही नहीं है। तो उसको अगर आप एड्रेस कर देते हो वहीं पे, तो आपका चांसेस ऑफ लिटिगेशन एंड स्क्रूटनी रिड्यूसेस लाइक एनीथिंग। ओके, ग्रेट। So, again, so what your point is कि the mistakes that we make at the ground level are the trigger point for litigations. Now, can you give me one example where very small mistake at the beginning has costed a client very big, जो काफी बड़ा litigation point बन गई हो going forward client के लिए, ऐसा एक example? जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने बात करते हैं कि पीएफएसआई का, फॉर एग्जांपल अगर बात करें कि टैक्स पेमेंट करने का ड्यू डेट है 15th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, बराबर। तो अगर वो 16th को देते हैं हम्म, तो आपका डिसअलाउ हो जाता है। disallow तो होता है। कितने सारे कंपनीज में पीएफएसआई का पेमेंट है 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख। अब उसका अगर 70 लाख डिसअलाउ हो गया, तो एक बार में आपका अराउंड 20 लाख इंटरेस्ट पेनल्टी लेके 50 लाख तो वापस से टैक्स लग जाएगा। तो छोटा सा मिस्टेक, एक दिन का डिले, हम्म, एंड वी हैव बीन टेलिंग आवर क्लाइंट्स फ्रॉम सो मेनी डेज एंड सो मेनी इयर्स कि एक दिन डिले नहीं होना चाहिए, बट कभी कभी क्या होता है, क्लाइंट इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। मुझे एक दिन का तो डिले हुआ है, ये हुआ है तो, और उसके चक्कर में लिटिगेशन इसके ऊपर बहुत साल से चल रहा था। चेकमेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने 2022 में एक ऑर्डर पास किया जिसमें बोल दिया गया कि एक दिन डिले भी नहीं माना जाएगा। तो तब से लेकर आज तक कितने सारे केसेस खुल गए। छोटी छोटी बातें हैं ये तो, बट पीपल नॉट अवेयर ऑफ दैट कि ये एक दिन का डिले भी इतना बड़ा टैक्स का डिमांड ला सकता है। So, can you tell me what are the most common mistakes that business owners makes which land them into tax litigation? एक कॉमन मिस्टेक्स, जैसे कि आप अगर ध्यान दोगे तो बहुत जन आजकल हर बिल्स का नया जनरेशन स्पेशली जो भी खर्चा कर रेस्टोरेंट जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई बिल्स विल्स आजकल कोई रख नहीं रहा है। हम्म, तो पहले ज़माने में पीपल वर सीरियस, हर चीज़ का बिल रखते थे, वाउचर के साथ बिल लगा जाता था। अब लाइफ तो इजी हो गया, अब आपको फ़ोटो लेना है, सबका क्लाउड अकाउंटिंग है, बिल अटैच कर लो अपना उस ट्रांजैक्शन के साथ। आजकल तो इतने सारे अच्छे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं कि आप चलते फिरते फ़ोटो लेके क्लाउड में अटैच कर सकते हो बिल्स। तो ये सब जो नया जनरेशन अभी यूज़ नहीं कर रहा है, दे दे टेल देयर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड देयर सीनियर पीपल, फादर्स और ग्रैंडफादर्स कि इतना मेरे से नहीं होगा। अब ये बहुत बड़ा कॉमन मिस्टेक है। अगर आप खर्चा करते हो और सपोर्टिंग नहीं रखते हो तो आप कैसे जस्टिफाई करोगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि क्या चीज़ का खर्चा है। अब कुछ सैलरी पीपल होते हैं, वो एचआरए में इतना बड़ा बड़ा क्लेम कर देते हैं, उनके बैंक से रेंट ही नहीं जा रहा है। अब वो बोलते हैं कि मैंने तो कैश में दिया है, तो मैं बोलता हूँ ठीक है भाई, कैश में दिया तो तुम्हारे बैंक में कैश विड्रॉ होना चाहिए, वो कैश विड्रॉ नहीं दिख रहा है। तो मतलब कि इतना सिली सिली मिस्टेक्स लोग करते हैं, ऐसा ऐसा क्लेम ले लेते हैं, उनके पास कोई सपोर्टिंग नहीं है, कोई बैंक में कोई ट्रांजैक्शंस नहीं है। तो आप जो भी कर रहे हो, आप उसके पीछे पहले देखो तो सही कि उसके डेटा है या नहीं आपके पास। आप कोई भी क्लेम, कोई भी एक्सपेंस तो मत लो।
फिर जैसे मैंने आपको बोला कॉमन मिस्टेक्स में जैसे मिसमैच होता है, अलग अलग अथॉरिटीज़ का मिसमैच है। अब कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट के मिस्टेक से भी आपको प्रॉब्लम आ जाता है। कभी मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदा, अब वो स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी ने उसका वैल्यू दिखा दिया, मार्केट वैल्यू 5 करोड़। और जब मैंने खरीदा तो मैंने खरीदा 4 करोड़ 80 लाख में। तो फॉर एग्जांपल 10% अलाउड है वेरिएशन यस, सर्कल रेट से, तो भी उसने स्क्रूटनी में डाल दिया। क्यों डाल दिया? क्योंकि जब इनकम टैक्स पोर्टल में पूछा गया था कि इसका डिफरेंस का रीज़न बताओ, तो मैंने जवाब ही नहीं दिया, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि इनकम टैक्स पोर्टल में इस तरह का क्वेरीज आ रहा है। तो पहला बात है कि आप बिजनेसमैन हो तो आप अपने कोई को रिटेनरशिप में रखो। आप अगर एक इनकम टैक्स रिटर्न के लिए एक सीए को बोलते हो कि मेरा साल में एक बार रिटर्न भर दो, तो वो तो आपका पूरा साल चेक नहीं करता है। या तो आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, अपने ऑडिटर को दो, अपने सीएफओ को दो। अगर आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कर रहे हो तो फिर कैसे होगा ये काम? इसमें तो मिस्टेक्स होना ही है। तो ये सब कॉमन मिस्टेक्स है। नोटिस आता है तो नोटिस में टेक्निकल पॉइंट्स को चैलेंज करना चाहिए, उसके लिए आपको एक एक्सपर्ट को हायर करना चाहिए। वो नोटिस में देखते हैं कि लोन कंफर्मेशन मांग रहा है, ये मांग रहा है, दे दिया अपने जूनियर अकाउंटेंट को, वो रिप्लाई बना के जमा कर दिया। अब उसके अंदर कोई इशू आया, अब वो लिटिगेशन चलते जा रहा है। अगर कोई एक्सपर्ट को दिया होता तो वो तो पहले ही बता देता कि नोटिस ही इनवैलिड है, वहीं बस लिटिगेशन पॉइंट पे ही क्लोज हो जाता था। तो ये सब अवेयरनेस कम है और थोड़ा सा दे आर नॉट सीरियस, तो दे टेक थिंग्स लाइटली बिकॉज इनकम टैक्स कंप्लायंस लोगों को थोड़ा बोरिंग लगता है। दे आर बिजनेसमैन का ध्यान खाली सेल्स सेल्स सेल्स, ऐसा बस। क्योंकि ये बुक कीपिंग, ये वो नया जनरेशन तो बहुत ही परेशान है। वो तो चाहता ही नहीं है इतना बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और रिकॉर्ड्स का झमेला। वो तो बोलता है भाई हमको तो सेल्स ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से तो कैसे चलेगा? आपको हर चीज़ का जिम्मेदारी लेना ही पड़ेगा। तो समवेयर at least you feel current generation of Indian entrepreneur more specifically are underestimating the importance of documentation and preventive compliances. हाँ, उसका रीज़न यही है कि उन्होंने देखा नहीं है लाइफ में टैक्स कोई, लिटिगेशन क्या कर सकता है उन्होंने उनको पता देखा नहीं नहीं है, है। उन्होंने सेटबैक देखा नहीं, उन्होंने कभी बड़ा नोटिस देखा नहीं है। अभी आपको पता होगा कि फेक एचआरए, फेक पॉलिटिकल डोनेशन को लेके 1.5 लाख 2 लाख नोटिसेस गवर्नमेंट ने रिलीज किया है। Yes. यंगस्टर्स क्या कर रहे हैं? कोई भी टैक्स प्रोफेशनल या कोई भी नॉन प्रोफेशनल फ़ोन कर देता है, बोल देता है मैं आपको इतना रिफंड दिला दूंगा, और वो उनको फाइल दे देते हैं रिटर्न फाइल करने के लिए। तो उनको पता ही नहीं है कि रिफंड ऐसे कोई भी बढ़ा नहीं सकता है। रिफंड तो आपके, आप सैलरीड क्लास हो तो आपका एम्प्लॉयर तो आपका देख के टीडीएस काट रहा है, वो एक्स्ट्रा तो काट नहीं रहा है। अगर आपके पास एचआरए था, पॉलिटिकल डोनेशन था, तो आपने अपने एम्प्लॉयर को क्यों नहीं बताया? और बताया भी तो आपने। ये फेक क्लेम जो लोग कर रहे हैं तो सीरियस होना पड़ेगा। मतलब इनको भी डर नहीं है, अब नोटिस आने लग गया है, अब ये एक बार ही धक्का खाएंगे लाइफ में, तब ये ऐसा नहीं करेंगे भाई। हाँ। तो बेसिकली सीनियर्स आर सीरियस बिकॉज दे नो क्या होता है ये सब। I think they have seen what can go wrong. या जूनियर्स को अभी उन्होंने लाइफ पूरा देखा नहीं है, तो जब धक्का पड़ता है तब आदमी संभलता है। तो कुछ लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, कुछ लोग दूसरों की गलतियों से सीख रहे हैं। तो दूसरों maybe की they will गलती से learn सीज from और their own बेटर। mistakes. एब्सोल्युटली They learn the hard way. करेक्ट करेक्ट। थोड़ा अवेयरनेस रखो, थोड़ा दूसरे की गलती से सीखो, इतना अग्रेसिव I मत think रहो somewhere this जो is ऊपर देखा जाए। somewhere I feel this is not about awareness. अगर आप उनको बता भी देते अगर वो पॉइंट पे कि आप ये करोगे तो आपको फ्यूचर में नोटिस आएगी, फिर भी पीपल हैव इग्नोर्ड सच ऑनेस्ट एडवाइसेस एंड गॉन फॉर द रिफंड बिकॉज इट वाज अबाउट लालच। समवॉट लालच एंड समवॉट कि अरे यार मेरा एक्स फ्रेंड, मेरा ये तो फ्रेंड, उसको रिफंड मिल रहा है उसको नोटिस राहुल राहुल को देखो, मेरा फ्रेंड राहुल को तो मिल रहा है, रोहन को तो मिल रहा है, रजत को तो मिल रहा है, तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता? वो तो अपना अपना वेकेशन में चला गया इतना टैक्स बचा के। I आप feel I मुझे can vouch that. I have seen that personally as well. आप मुझे ये सब ज्ञान दे रहे हो और मेरा टैक्स ज्यादा लगवा रहे हो, ये क्या बात है?
आप आप अच्छे सीए नहीं हो। आप अच्छे एक्सपर्ट हो तो टैक्स बचाओ, ये क्या बोल रहे हो टैक्स दो? ये तो आपने इजी पाथ चूज कर लिया, मुझे ही ज्ञान मिल जाता है कभी कभी। हाँ, आपको नहीं, हम सबको मिला है। ओके, सो if you have to give a three-step formula to avoid income tax litigation, क्या होंगे वो मैजिकल थ्री स्टेप फॉर्मूला? बेसिकली आपको पता ही है कि मोदी गवर्नमेंट जब से आया है वो कोशिश कर रहा है कि कैश ट्रांजैक्शंस कम हो जाए। तो अभी भी बिजनेस हाउसेस में बहुत जगह कैश ट्रांजैक्शंस है। गवर्नमेंट ने ये भी बोल दिया कि 10 करोड़ टर्नओवर तक टैक्स ऑइड भी नहीं चाहिए अगर आपका कैश ट्रांजैक्शन नहीं है 5% तक, तो भी लोग कैश ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। तो आज के दिन यूपीआई के ज़माने में हर चीज़ कैश में करने का ज़रूरत नहीं, हर चीज़ के लिए बैंक अवेलेबल है, तो आप कैश ट्रांजैक्शंस को रिड्यूस करो। जहाँ भी ज़्यादा कैश ड्रॉइंग्स कैश डिपॉजिट है वहाँ आपका स्क्रूटनी जल्दी आने का चांस रहता है, बिकॉज गवर्नमेंट थिंग्स कि यहाँ कुछ फिशी है। तो आप कैश ट्रांजैक्शन कम करो, ये हो गया फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 2 हो गया कि आपका जो भी आपका ई कैंपेन्स और ये सब जो भी नोटिसेस आते हैं उसको इग्नोर मत करो। जैसे आप इनकम टैक्स पोर्टल में जाओगे, एआईएस का एक टैब है, एआईएस टैब के अंदर एक टैब है ई कैंपेन, ई कैंपेन के अंदर एक टैब है आपके सारे खर्चे या इनकम दिए हुए, वहाँ पे वो पूछ रहा है कि इसमें मिसमैच है, ये आपके पैन से रिलेटेड है, इज दिस रिलेटेड टू योर पैन, इज दिस पार्ट एक्सपेंडिचर, इज इट फुल एक्सपेंडिचर। उसमें पूरा ड्रॉप डाउन का लिस्ट दिया हुआ है कि यस करना है या रीज़न देना है। तो वो लोग फिल नहीं कर रहे हैं, तो उसके कारण बहुत बार स्क्रूटनी ट्रिगर हो रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम आ रहा है। और जैसे मैं बोलता हूँ कि रिपोर्टिंग एंटिटीज़ का जो मिसमैच है वो एक प्रॉब्लम है हमेशा से। तो वो मिसमैच का रिकन्सिलेशन आप बना के रखिए, और आप जब भी कुछ फाइल कर रहे हो तो जीएसटी इनकम टैक्स सबको मैच कराते हुए चलिए। आपने एक इनवॉइस का इनकम मार्च में ले लिया, जीएसटी में अप्रैल में ले लिया, तो वहीं मिसमैच आ गया, और लोग ऐसा करते रहते हैं। तो ये सब 3 चीज़ अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका काफ़ी लिटिगेशन कम हो जाएगा। So to minimize your cash transaction, to reply all the discrepancies that government has raised, and to make sure that we are reporting same numbers, same thing on all to all the government authorities, this can be the three key steps जो आपको litigation को avoid करने में काफी हद तक मदद करेगी। और जहाँ पे मिसमैच तो रहना ज़रूरी है, होगा ही होगा, तो वहाँ आपका एक आप एक रिको स्ट्रॉन्ग बना रिको के रखो, रिको keep your रिको answer ready। विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। क्योंकि कभी-कभी लोग मैं देखता हूँ कि रिको ही नहीं बना पा रहे हैं, बोलते वो तो मेरा अकाउंटेंट छोड़ के चला गया, वो कैसे किया मुझे वो पता ही है। डिपेंड, अब इसका क्या जवाब है? क्यों कैसे किया मुझे पता ही नहीं है। अगर कुछ है तो तो ये बी प्रिपेयर्ड, आज के डेट में रेडी हो जाओ, डोंट वेट फॉर द नोटिस टू कम। हाँ, और 3 साल मतलब बाद पता नहीं कौन कहाँ होगा। कॉन्करेंट बेसिस में आपको ये अपना पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन बनाना पड़ेगा। अब बाद में अगर कुछ देते हो तो नहीं चलेगा। So now that we have understood how we can avoid the tax litigation, but let's say कि किसी को नोटिस आ गई, someone has received a income tax notice. What is the first thing that they should do, or maybe first thing they should not do? जैसे मैं इसको एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल कि आप अपने घर में कभी कोई बीमार पड़ता है, फॉर एग्जांपल आपके स्पाउस का तबीयत ख़राब है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने फैमिली फिजिशियन को कॉल करते हैं। ज़रूरत पड़े तो वो घर आता है, वो चेक करता है, फिर वो बोलता है कि ये वाला प्रॉब्लम रिलेटेड टू कार्डियो है। तो फिर हम लोग उससे पूछते हैं तो किसको दिखाएं, फिर वो एक रेफ़र करता है कार्डियोलॉजिस्ट, फिर उसके पास जाते हैं। तो नोटिस जब आता है तो इसी तरह से अपने को चलना चाहिए। अपने पहले इन हाउस सीए या अपने इन हाउस अकाउंटेंट या जो भी अपना सीएफओ है, अपने उससे बात करें कि ये नोटिस आया है। तो अब इस नोटिस को खुद नहीं करना है, डिस्कस करना है कि कौन है इनकम टैक्स का लिटिगेशन का एक्सपर्ट, उनके जान पहचान में, उनको कांटेक्ट करो, उनके साथ एक जॉइंट मीटिंग करो। फिर वो गाइड करेंगे कि कैसे इस केस को आगे लेके जाना है। तो आप अपना एक बिजनेस एसोसिएट्स, बिजनेस प्रोफेशनल्स का एक चार्ट लिंक बना के रखो अपने गूगल शीट में या जहाँ पे भी,
जब जो इनकम टैक्स का एक्सपर्ट ये है, जीएसटी का एक्सपर्ट ये है, फाइनेंस का एक्सपर्ट ये है, आपके पास पैनल में 10 आदमी होने चाहिए, गो टू पर्सन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसके साथ मीटिंग करो, उसको ये काम दो। बट बिजनेसमैन क्या करते हैं, आपको तो पता ही है, इनकम टैक्स नोटिस में करोड़ों का डिमांड आ सकता है। वो क्या करते हैं, नहीं ये लिटिगेशन एक्सपर्ट तो 2 लाख रुपया फीस ले लेगा, उसको बचाने में लग जाते हैं। अब उसको बचाने में वो फ्री में करने जाते हैं अपने इन हाउस आदमी से, और पता चलता है वो लिटिगेशन में फंस गए, फिर बड़ा डिमांड आ गया। अब वो अपील ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट होते होते तो 2-4 लाख 5 लाख तो वहीं खर्चा हो गया। तो आप वैसे आपको नहीं चलना है, जो जो जिसको जिसका काम आता है उसको सौंप देना है और उनसे टच में रहना है। दैट इज द फर्स्ट थिंग टू डू। तो तो सीएस आर योर फाइनेंशियल डॉक्टर्स। अगर आपको कोई बीमारी आई है तो गूगल पे देख के खुद दवाइयाँ ना ले, जाके अपने फाइनेंशियल डॉक्टर को मिले, टेक देयर प्रोफेशनल एडवाइस। वो शायद आपसे उनकी प्रोफेशनल फीस ले लेंगे, बट देन यू कैन ट्रस्ट ऑन देम, दे विल सेव मच मोर देन व्हाट दे चार्ज यू। करेक्ट? अपने लाइफ में तो यही करते हैं ना। अब डॉक्टर्स में क्या करते हैं, डॉक्टर्स में तो नहीं बोलते हैं कि डॉक्टर साहब जनरल फीस आपको जो ठीक लगे आप दे दो। वहां पे तो हम लोग हेल्थ के लिए तो बहुत कॉन्शियस है, नहीं नहीं बेस्ट डॉक्टर बताओ कौन है, मैं वहीं लेके जाऊंगा अपनी वाइफ को। तो जहाँ पे वहां आप बोलते हो बेस्ट डॉक्टर कौन है, तो फाइनेंस में क्यों नहीं बोलते हो बेस्ट डॉक्टर कौन है? फाइनेंस अगर आपका खराब हो गया तो आपका क्या लाइफ अच्छा चल पाएगा? तो फिर आप फाइनेंस को क्यों नहीं इम्पोर्टेंस देते? Some people have learned this, some people are still learning this the hard way. तो हार्ड वे करने में तो फिर लाइफ हार्ड हो जाएगा। मैं शुड नॉट डू वही होगा जो आपको अपने इन हाउस अकाउंटेंट को नहीं देना है केस, क्योंकि कोई भी इंसान सर्वगुण संपन्न नहीं है। अगर कोई बोलता है मुझे सब आता है तो ही इज जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन। तो जैक ऑफ ऑल को आप अगर हर काम दे रहे हो तो व्हाई डू यू एक्सपेक्ट हिम टू डू ग्रेट इन एवरीथिंग? कोई आपके पास कोई भगवान जी तो बैठे नहीं है, इंसान बैठा है, हर इंसान का अपना अपना प्लस माइनस है। तो प्लीज़ आप इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर चला रहे हो, इतना बड़ा बिजनेस हाउस चला रहे हो, तो आप फाइनेंस को लेके इतने सीरियस क्यों नहीं हो? बी सीरियस एंड गेट द बेस्ट रिजल्ट्स आउट ऑफ देम। दैट्स इट। तो यहाँ आपने एक उनकी इंटरनल टीम की बात की जो वो लोग यूज करते हैं कॉस्ट बचाने के लिए या प्रोफेशनल के पास ना जाने के लिए, बट और समहाउ वो ये भी करते हैं कि टाइम भी नहीं देना चाहते हैं। इंटरनल टीम को बोल दिया तो मेरा टाइम बच गया, देख लो। देख लो। तो वो टाइम बचाने जाते हैं, वहाँ लिटिगेशन लंबा चल जाता है, टाइम डबल लग जाता है। हम्म, नहीं, सो रिसेंटली और एक चीज पास में डेवलप देखी है मैंने कि लोग एआई का भी यूज कर रहे हैं। तो हाउ मच रिलायंस should business owners place on this AI tools when it comes to handling tax litigation? जैसे अगर अपने एआई का बात करते हैं तो एआई कौन यूज कर सकता है? फॉर एग्जाम्पल, बिजनेसमैन को अगर एआई यूज करना है तो उसको यूज करना चाहिए अपने बिजनेस के लिए, नॉट फॉर टैक्स लिटिगेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेसमैन है जो ग्लास मैन्युफैक्चर करता है। अब वो एआई में जाके चेक कर सकता है कि कौन से इंडस्ट्री में ग्लास का डिमांड हाईएस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, रियल एस्टेट में मिला उसको हाईएस्ट। फिर वो रियल एस्टेट चेक करेगा कि रियल एस्टेट में किसका कंजम्पशन हाईएस्ट है। फिर देखा है लिस्ट ऑफ कंपनीज ये आया, फिर वहाँ का वेंडर कौन है, फिर वो वैसे का एआई यूज करे मार्केट रिसर्च करने के लिए, अपना डेटा यूज करने के लिए, तो वो रिलेट कर पाएगा, उसको यूज कर पाएगा। अब एआई हालुसिनेट करता है, ये लोगों को पता ही नहीं है। कितना सारा चीज एआई आंसर देता है कॉन्फिडेंटली जो रॉन्ग होता है। काफी अब सारे। आपको लिटिगेशन के बारे में पता ही नहीं, एज अ बिजनेस ओनर कोई सेक्शन आपको पता ही नहीं, एआई आपको कुछ बता दिया, आप उसको सही मान लिए और उसको रिप्लाई दे दिए, तो आपका केस तो पूरा का पूरा खराब हो सकता है। तो एआई वहां यूज करना है जिसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज है। आपको अपने बिजनेस के बारे में नॉलेज है, वहां एआई यूज करो। कौन से ज्योग्राफिकल सेक्टर में मेरे क्लास का डिमांड ज्यादा है, उस सेक्टर में मैं ऑफिस खोलने का कोशिश करूं, उस सेक्टर में मैं अपना सेल्स एजेंट बैठाऊं। जहां आपको पता है वहां एआई यूज करो, जहां आपको कोई आइडिया नहीं वहां एआई यूज करेंगे, एआई तो गलती जवाब भी देता है।
आपने सुना कि नहीं सुना मुझे नहीं पता, अभी कुछ दिन पहले बैंगलोर में एक आईटीएटी में बहुत बड़ा केस, ट्रिब्यूनल जज ने एआई किसी मेंबर ने, मतलब कोई डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव जो फाइल करते हैं ट्रिब्यूनल में सबमिशन, उन्होंने कोई एआई बेस्ड केस लॉज लिख के फाइल कर दिया और ट्रिब्यूनल जज ने उसको चेक नहीं किया, वही केस लॉज अपने ऑर्डर में छाप दिया और वो पब्लिश हो गया पूरे टैक्समैन में, हर जगह पब्लिश हो गया। पता चला कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता वो केस। एआई क्या करता है, एक देयर इज अ टर्म हैलुसिनेशन, हैलुसिनेशन मतलब मन गढ़ंत कहानी बनाना। तो एआई मन गढ़ंत कहानी बनाता है, जिसको आइडिया नहीं वो पकड़ नहीं पाएगा। बिजनेसमैन को लिटिगेशन का आइडिया नहीं है, वो एआई के चक्कर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं होके ऑल इन्वेस्टमेंट, एआई मतलब ऑल इन्वेस्टमेंट गॉन टू ड्रेन, ऐसा कुछ हो जाएगा। So half knowledge is a dangerous thing. AI, यस, use of AI with that half knowledge of tax will not save you, but will land you into troubles. So again, valuable advice from a veteran: don't use AI tools for tax litigation. Please refer your consultants to do the job for you. एक जगह मैंने देखा था, एक एक डॉक्टर के यहाँ गया था, तो उसने बोला, वहाँ एक बड़ा सा बोर्ड लगा रखा है कि आपने सुना भी होगा, इसका एक बहुत बड़ा जोक भी बना था कि अगर आप दवाई मेरे हिसाब से लेंगे तो मेरा फीस है 3,000 रुपया, अगर आप गूगल के हिसाब से लेंगे तो मेरा फीस है 10,000 रुपया। तो लोग सब डॉक्टर के पास जाते हैं गूगल देख के, डॉक्टर साहब ये दवाई ले लूँ?" डॉक्टर बोलता, अच्छा गूगल से चलना है तो फिर 10,000 फीस दो, फिर मैं बताऊंगा। तो ये अब तो गूगल नहीं, अब एआई हो गया है। तो एआई से अगर चलना है तो आपको उसका आइडिया होना पड़ेगा उस टॉपिक का। जैसे मैं इनकम टैक्स लिटिगेशन का मुझे आइडिया है, तो मैं एआई से हेल्प लेके अपना सबमिशन को इम्प्रूव कर सकता हूँ। बट बिजनेसमैन तो अपना बिजनेस ही इम्प्रूव कर सकता है, अपने सिस्टम्स को इम्प्रूव कर सकता It can help you, it cannot replace you. At least है। not for now. लिटिगेशन में हेल्प नहीं कर सकता बिजनेसमैन को एआई। Great. Now, अच्छा, अगर going forward, let's say कि if you are a CEO of a group companies, multiple group बड़ा group है, तो what data or KPI should be a part of your monthly MIS? So something that will give me a clear picture के where I stand from my tax point of view. What should be monitored? Now, what are the things or KPIs or data that should be monitored from the tax angle on monthly basis as a part of an MIS? हाँ तो many businessmen are not aware that there are so many notice alert softwares available in the market. They create a systematic dashboard which you can check on a daily basis or a monthly basis, where you can see ये नोटिस कब आया है, इसका रिप्लाई कब गया है, इसका ड्यू डेट क्या है। वो डैशबोर्ड आपके लिए रेडी अवेलेबल है। तो वो डैशबोर्ड, वो नोटिस अलर्ट सॉफ्टवेयर हर बिजनेसमैन के पास होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली इनकम टैक्स पोर्टल का, अगर मेरे पास, मैं एक बड़ा ग्रुप ऑफ कंपनीज चलाता हूँ, मेरे पास 80 कंपनीज है प्राइवेट लिमिटेड, मेरे पास 10 एलएलपीज है, 5 प्रोप्राइटर इंडिविजुअल 10-15 हैं, तो इतने मेरे पास टोटल पैन 100 पैन्स हैं। अब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ना मेरे आदमी के लिए पॉसिबल है कि बार बार आईटी पोर्टल में जाए, देखे कोई नोटिस आया नहीं आया। मेल्स में कभी कभी स्पैम में नोटिस चला जाता है, नोटिस मिस हो गया। अब वो नोटिस मिस होके बड़ा ऑर्डर पास हो गया, बड़ा डिमांड आ गया, तो फिर अब उसको डील करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि ऑलरेडी फिर बैंक अटैचमेंट होने का बात आ रहा है, तब आपको पता चल रहा है। तो अगर आप नोटिस अलर्ट सॉफ्टवेयर लगा लेते हो तो आपको रियल टाइम बेसिस पे पता रहता है कि मेरा नोटिस आया है। ये तो हुआ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 हुआ कि आपके जीएसटी का लिटिगेशन चलता रहता है, आपके इनकम टैक्स का चलता रहता है, आपके लेबर लॉस के कुछ चलते रहते हैं, ऐसे करके 3-4 लिटिगेशन चल रहे हैं। तो कौन सा लिटिगेशन का क्या प्रोग्रेस है, उसका एक एमआईएस रिपोर्ट आपके पास आना ही चाहिए हर मंथ। कौन So, प्रोफेशनल क्या काम कर रहा है, a summary of किस what स्टेज all में, cases are going on. किस स्टेज में वो केस चल रहा है,
डिपार्टमेंट का नोटिस आ रहा है और हमारा प्रोफेशनल जो है वो कहीं डेट पे डेट तो नहीं ले रहा है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि कुछ कुछ जगह कुछ प्रोफेशनल्स बहुत डेट ले लेते हैं, तो वो लेना सही नहीं है। कभी हम देखते हैं कि प्रोफेशनल बेचारा कंपनी से डेटा मांगे जा रहा है, उसका अकाउंटेंट बोले जा रहा है हाँ देते हैं, और यहाँ सीईओ को पता ही नहीं है। तो दिस इज द टाइम वे सीईओ हैज टू चेक ऑन अ मंथली बेसिस कि जो अकाउंटेंट ने डेटा दिया कि नहीं दिया प्रोफेशनल को, तो थिंग्स आर मूविंग स्ट्रीमलाइन और नॉट। तो ये सब चीज़ अगर वो लिटिगेशन और सब चीज़ को अगर मंथली बेसिस पे या वंस इन 2 मंथ्स भी चेक कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि ये सब चीज़ मैं देखता हूँ कि मोस्टली लोग इग्नोर करते हैं और 6 महीने साल में एक बार देखते हैं और दे मिस आउट टू सो मेनी थिंग्स। तो ये बहुत बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो सीईओ लोग को देखना ही चाहिए। So for a big group, using some kind of apps or tool which you give them kind of a notification whenever there is a new notice or a new order being passed, that is one. And second, a monthly summary of what all cases are running across various laws to make sure that things are moving forward and that they are not stuck at one point. टू ऐड ऑन टू वन मोर पॉइंट कि कभी कभी एक डिसीजन लेना पड़ता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ता है कि फर्दर अपील करना है कि नहीं करना है। तो वो सब भी सीईओ को भी इन्वॉल्व होना चाहिए उस डिसीजन में। क्योंकि कभी कभी टैक्सेशन मेरा आ रहा है, फर्दर टैक्स है मेरा आ रहा है 5 lakhs का, मेरा लिटिगेशन कॉस्ट ही 4 lakhs है फॉर एग्जाम्पल, Doesn't make a sense. तो डजेंट मेक अ सेंस। क्योंकि उसके ऊपर फिर लिटिगेशन करने की मेरा मैन आवर्स भी जा रहे हैं मेरे अकाउंटेंट का, वो भी डेटा बना रहा है। तो एक तरह से तो ये सब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना ज़रूरी है। ये 3 पॉइंट है। Great. So moving on to our second part, we'll turn to the professional who makes all this happen. Tax consultants, CAs, and all other professionals out there. This part is for you. बाय टू माई सीए फ्रेंड्स। So Rajat, we all know the importance of specializations. Okay. So can you give 3 reasons why a professional should consider specialization in income tax litigation? Yeah, there are many reasons, but I will tell you 3 reasons. लाइक इनकम टैक्स लिटिगेशन क्या है, अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ या किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, तो फर्स्ट आप स्पेशलाइज तभी कर सकते हो। आपने 3 इडियट्स मूवी देखा है कि जो चीज़ आपको अच्छा लगता है आप उसमें अगर स्पेशलाइज करोगे तब आगे बढ़ोगे। ये आजकल के जनरेशन को भी ये बात समझ में आता है। तो अगर आपको इनकम टैक्स केसेस में इंटरेस्ट है, यू लाइक देम, यू लाइक टू सॉल्व देम, आप आपने जो अपना सीए का पढ़ाई किया उसमें भी आपने देखा इनकम टैक्स से रिलेटेड क्या क्या आ रहा है, फिर आप आर्टिकलशिप में देखे कुछ कुछ केसेस देखे, आपका अगर उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा बन रहा है तो आप उसको, जब आप केस पढ़ते हो तो आप उसको एज अ स्टोरी बुक पढ़ते हो, आपको उसमें इतना फन मिलता है, तब तो आपको स्पेशलाइज करना चाहिए इफ़ यू आर एंजॉइंग इट। एक बार आप एंजॉय करोगे देन आपको उसमें और डीप जाने का मन करेगा, और जब तक आप डीप नहीं जाओगे यू कैन नॉट स्पेशलाइज इट। क्योंकि इनकम टैक्स केसेस में एक एंड और में भी पूरा का पूरा लॉ का मीनिंग चेंज हो जाता है, एक एक वर्ड से चेंज हो जाता है इंटरप्रिटेशन, एक एक सेंटेंस के हाई कोर्ट का अलग इंटरप्रिटेशन है, सुप्रीम कोर्ट का अलग है। तो आपको उतना डीप जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो फिर आप इनकम टैक्स लिटिगेशन में स्पेशलाइज कर सकते हो। एक तो स्टोरी बुक जैसे आपको पढ़ना पड़ेगा केसेस, एक आपको लव होना चाहिए टुवर्ड्स इनकम टैक्स सब्जेक्ट। ये हो गया पॉइंट 2। अगर आपको लव ही नहीं है, आपको अगर ऑडिट पसंद है, तो फिर आप इनकम टैक्स में मत, आप ऑडिट में जाओ, क्योंकि यहाँ बहुत डेडिकेशन चाहिए। मेरे को बहुत लोग बोलते हैं कि आप इनकम टैक्स लिटिगेशन के साथ आप बाकी लिटिगेशन भी देख लो। तो मैं बोलता हूँ कि आज के ज़माने में इतना जो सर्कुलर्स चेंज, इतना जो ऑर्डर्स आ रहे हैं, इतना जो कॉम्पिटिटिव है मार्केट, इसमें आप सब चीज़ के मास्टर नहीं बन सकते।
तो आप चूज़ करो कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है, आप उसको पकड़ के उसमें डीप जाओ, अंदर जाओ। फिर आप इनकम टैक्स स्पेशलाइज़ करने में आपके और भी फ़ायदे भी हैं कि ये आपको एक्सट्रोवर्ट भी बना देता है। बिकॉज़ आई रिमेंबर कि मैं पूरे लाइफ़ इंट्रोवर्ट था। स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, सीए कोर्स में जब हम लोग को आईटी और ओटीटी करना पड़ता था, प्रेज़ेंटेशन के लिए बुलाया जाता था, तो मुझे प्रेज़ेंटेशन देने में भी ऑकवर्ड फ़ील होता था, आई वाज़ नॉट वेरी कॉन्फिडेंट। बट ये इनकम टैक्स लिटिगेशन में मैं आईटी-एटी जाने लगा, जज और इतने सारे मेंबर्स के सामने जब मुझे केसेस प्रेज़ेंट करने पड़े, आर्ग्यू करने पड़े, तो मेरा धीरे-धीरे मैं इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट हो गया। तो ये आपका पर्सनैलिटी को भी स्मार्ट बना रहा है। आप और आज के ज़माने में जो एक्सट्रोवर्ट नहीं है, वो मार्केटिंग भी नहीं कर सकता है। अगर आप मार्केटिंग आप नहीं करते हो, तो आप बैक ऑफ़िस में खाली बैठे हो, तो आपको कोई जानता नहीं है। अगर आपको कोई जानता नहीं है, तो आपके क्लाइंट्स कैसे बढ़ेंगे? हम्म। तो आपको लव होना चाहिए सब्जेक्ट से, आपको केसेस में स्टोरी बुक्स दिखने चाहिए, आपको ये इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बना देता है। ये सब आप करते हो तो आप स्पेशलाइज़ कर सकते हो इनकम टैक्स में। तो फॉलो योर पैशन एंड इट विल हेल्प यू ग्रूम योर पर्सनालिटी। इन एडिशन टू लक्ष्मी जी जो आपके पास आएगी वो अलग है। हाँ, क्योंकि वो तो कोई चीज़ में अगर आप एक्सपर्ट बन जाते हो, तो उसका वैल्यू हमेशा ज़्यादा होता है और आप हर चीज़ थोड़ा-थोड़ा जानते हो, उसका कोई वैल्यू नहीं है बिकॉज़ इट विल सिर्फ आल्सो हेल्प यू गेट अ प्रीमियम फीस इन व्हाट यू डू। या क्लाइंट विल नेवर स्टिक टू यू ना, क्योंकि वो अगर आप हर चीज़ थोड़ा-थोड़ा जानते हो, तो कहीं भी जा सकता है। बट आप एक चीज़ के एक्सपर्ट हो, तो क्लाइंट इज़ ऑलवेज़ वो पर्टिकुलर वांटिंग। चीज़ के पास वो आपके पास ही आएगा। हाँ, जैसे मैं बोला कि इस ये अगर कार्डियोलॉजिस्ट बहुत अच्छा है, तो क्लाइंट मेरे पास उस कार्डियोलॉजिस्ट के पास ही जाएगा जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है। जनरल फिजिशियन के पास तो फिर आप कभी दोगे नहीं ना लाख रुपया फीस। आप जनरल फिजिशियन को लाख रुपया कभी दोगे नहीं। कार्डियोलॉजिस्ट को आप दे दोगे। आज भी तो नहीं करेंगे। तो वही है आपका सेम चीज़, सेम गोज़ विद सीए फैटर्निटी। आपको एक्सपर्ट बनना ही चाहिए, कोई ना कोई चीज़ का। दिस इज़ माय एडवाइस टू ऑल माय यंग प्रोफेशनल्स कि आप एक्सपर्ट बनो। आप बोल सकते हो कि मैं तो नया हूँ, मैं अभी कैसे बनूँ? आई एग्री विथ यू। 5 इयर्स बाद, 6 इयर्स बाद तो बनो, 7 इयर्स बाद तो बनो। अब कब तक नए रहोगे? To have a vision to go on that line may not be today but someday tomorrow. एब्सोल्युटली। So now that you have specialized in this particular area of your practice, but then there's also a problem that tax law keeps on changing. Law काफी fast change होता है, हर साल एक बजट में कुछ नए amendments आते हैं, कुछ नए circulars आते हैं। तो again, uh, how do you stay updated and again how can young CS build on this thing? जैसे आप देखते होंगे इंस्टा में फीड आता रहता है, अलग-अलग। लिंक्डइन में फीड आता रहता है, फेसबुक में फीड आता रहता है। तो अगर मैं आपको अपना लिंक्डइन अकाउंट कभी दिखाऊँगा, तो मेरे फीड खाली डायरेक्ट टैक्स रिलेटेड आते हैं। Correct. तो उसमें अलग-अलग केसेस कौन कैसे जीत रहा है, तो वो पढ़ने से मुझे आइडिया भी मिलता है, अलग दूसरे प्रोफेशनल्स क्या कर रहे हैं, कैसे केसेस जीत रहे हैं, किस टाइप का केसेस कर रहे हैं। तो वो मेरा हॉबी है। तो अगर अपने हॉबीज़ को इस तरह का बना लो कि आपको लिंक्डइन में केसेस देखने में मज़ा आ रहा है, और फिर आप जैसे एक टैक्समैन बोल के एक ऐप है, Hmm. अ, एक इनकम टैक्स रिसर्च का ऐप है, उसमें उसमें भी रोज़ आता है कि ये टॉप 10 केसेस, टॉप 20 केसेस आज के क्या थे। तो हर केस का ऊपर का सिनॉप्सिस आता है, 3 लाइन्स 4 लाइन्स का। तो मैं क्या करता हूँ, ऑन अ डेली बेसिस 10 मिनट खाली देखता हूँ क्या-क्या सिनॉप्सिस है 10 केस का, टॉप 10 केसेस का। तो उस टॉप 10 केसेस का सिनॉप्सिस मैं चेक करता हूँ, फिर जो मुझे केस इंटरेस्टिंग लगता है, मैं उस केस में डीप डाइव करता हूँ। Okay. फिर मैं वो केस पूरा स्टडी करता हूँ। तो ये मेरा इंटरेस्ट है। अगर कोई टैक्स लिटिगेशन में एक्सपर्ट बनना चाहता है, अगर उसका इंटरेस्ट अगर इसमें है, तो फिर वो इस तरह से कर सकता है। फिर मैं अपने जूनियर्स को बोल रखा हूँ कि हर वीक जो सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस आते हैं, हमारा एक ग्रुप है उसमें डालो। Okay. फिर तुम मुझे उसका एक शॉर्ट सिनॉप्सिस दो, ये सर्कुलर क्या बोल रहा है। उसको मैं पढ़ता हूँ।
तो इस तरह से आप अपने आप को अपडेटेड रख सकते हो। बेसिकली द मूड पॉइंट इज कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए इसमें। अगर आप इफ यू आर लविंग दिस सब्जेक्ट देन यू विल Kind of. keep on learning it and there's no end to that. So I think reading is something that will keep you updated. And to add on that, I think social media has made it a little easier. It has given us a better access चीज़ों को। तो जो हमको कल सिर्फ बुक्स में मिलता था, आज हमको वो मल्टीपल जगहों पे मिल गया है। इट कैन बी लिंक्डइन, इट कैन बी व्हाट्सएप, इट कैन बी इंस्टाग्राम। आप पूरे इंडिया का देख पा रहे हो ना। एक सिटी मैं Yes. कलकत्ता में बैठा हूँ, तो मुझे पता है बॉम्बे में क्या किस तरह के केसेस हो रहे हैं, बैंगलोर में कहाँ के हो रहे हैं। तो मैं सोशल मीडिया से मुझे ऑल ओवर इंडिया के न्यूज़ आ रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा बेनिफिट है। So, keep on reading, keep on learning new thing on consistent basis, and consistency is the key. एब्सोल्युटली। Okay, रजत जी। नाउ एज अ सीनियर, कई बार आपके पास जूनियर्स भी लिटिगेशन मैटर्स लेके आते रहेंगे, जिन्होंने जो केसेस को उन्होंने आईटीओ लेवल पे हैंडल किया होगा या मे बी अपील लेवल पे हैंडल किया होगा। तो व्हाट आर द 3 कॉमन मिस्टेक्स दैट प्रोफेशनल मेक्स व्हेन इट कम्स टू हैंडलिंग लिटिगेशन प्रैक्टिसेस? स्टेक्स में देखा जाए तो बहुत बार जूनियर्स आते हैं, तो मैं देखता हूँ कि उन्होंने जो टेक्निकल गैप्स रहते हैं नोटिसेस में, वो उनसे काफ़ी बार मिस हो जाते हैं कि ये नोटिस टाइम बार्ड था, नोटिस में दिन नहीं था, नोटिस में जो साइनिंग अथॉरिटी अप्रूविंग अथॉरिटी का जो डिटेल्स होता है मांगना चाहिए था, उन्होंने मांगा ही नहीं, तो अप्रूवल ठीक से लिया हुआ यानी उन्होंने चेक ही नहीं किया। तो ये सब टेक्निकल गैप्स वो चेक नहीं करते हैं। अगर ये चेक कर लेते और पहले ही चैलेंज कर देते तो हो सकता है कि लिटिगेशन वहीं स्टॉप हो जाता और क्लाइंट के फेवर में ऑर्डर आ जाता। तो ये सब चीज़ को हम लोग बाद में फिर टेकअप करते हैं, और कुछ कुछ चीज़ बाद में टेकअप नहीं भी कर पाते, क्योंकि कभी कभी जुडिशियल अथॉरिटी बोलता है कि ये गैप आपको पहले बताना चाहिए था, आपको वहाँ चैलेंज क्यों नहीं किया। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है। और जूनियर्स को मैं देखता हूँ कि वो नोटिस मिस कर जाते हैं, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यूजुअली रिलाई ऑन देयर क्लाइंट्स, तो दे विल बी शेयरिंग देयर नोटिस विद द देयर सीएस। बट क्लाइंट्स के पास कभी कभी स्पैम में चला जाता है नोटिस, या कभी उनको मिला नहीं, ध्यान नहीं दिए, सीएस को मिला ही नहीं नोटिस, तो उनका नोटिस ही मिस हो गया, रिप्लाई मिस हो गया और डिमांड आ गया। तो ये बहुत बड़ा इशू है। तो उसके लिए मैंने बोला था पहले भी, एक नोटिस अलर्ट सॉफ्टवेयर होता है। सब सीएस को मैंने बोला कि आप लोग नोटिस अलर्ट सॉफ्टवेयर लगा लीजिए, सारे क्लाइंट्स का वहाँ पे पैन नंबर्स फिल कर दीजिए, तो आपके पास अपने आप ही नोटिस अलर्ट आ जाएगा कि कब किसका नोटिस आ रहा है। वो मोबाइल पे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो इट्स वेरी सिंपल। तो ये 2 पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है कि नोटिस जब आता है तो आप एओ को चैलेंज करते हो, और कभी कभी क्या होता है कि एओ सुनता ही नहीं आपकी बात, वो अपने ही रास्ते चलता रहता है, बोलता है नहीं नहीं मैं तो ठीक ही हूँ, सबमिशन इग्नोर करके पूरा अपना करता है वो। अपने हिसाब से चलता है, और फिर कुछ कर देता है, ऑर्डर भी खराब कर देता है। तो बहुत सारे स्टेजेस में देयर आर ऑप्शंस ऑफ गोइंग फॉर रिट पिटिशन बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट। इंस्टेड ऑफ जूनियर सो अपील। हाँ, मतलब अपील में तो जाएंगे ही, बट वी विल फायर ऑल द सिलेंडर्स, विल यूज ऑल आवर एम्यूनेशन। अपील का तो आपको पता ही है, आजकल स्टेप प्रोग्रेस कितना स्लो हो गया। ऑर्डर अपील कुछ सीआईटीपी केसेस, हाँ सीआईटीपी केसेस कभी कभी तो 5 साल चल रहे हैं, 6-7 चल रहे हैं। मेरे पास कुछ केसेस है जो पेंडिंग है 4-5 साल से, तो बहुत पेंडिंग, बहुत पेंडेंसी है। तो रिट फाइल तो करने का कोई टाइम टाइम पीरियड है क्या? रिट फाइल करने का कोई टाइम रिट पीरियड है? रिट का लॉजिक ये होता है, कोर्ट चेक ये करता है कि आपने आपने जो अथॉरिटी है उसको आपने बोला था कि ये इशू है। अब वो अथॉरिटी आपका बात नहीं सुन रहा है, और उसके रीजनेबल टाइम के बाद आप रिट में आ गए। अब आपने इनकम टैक्स अथॉरिटी को बोला था कि ऐसे मत करो, दिस इज रॉन्ग, पिछले 2 साल पहले, अब आज आप रिट में नहीं आ सकते। आपने जब बोला था उससे रीजनेबल टाइम, देयर इज नो टाइम लिमिट, रीजनेबल टाइम मे बी 30 days, 40 days, 60 days, 90 days। इट इज नॉट डिफाइंड बट हाँ, केस टू या केस। मतलब रीजनेबल होना चाहिए। ऐसा जज आपको फिर बोल सकता है कि आप 3 साल बाद क्यों आए हो, समझ गया। हम्म। और बोल सकता है कि आपके पास तो अपील का ऑप्शन था ही, तो आप यहाँ क्यों आए हो। तो
तो मेरा बोलना इसमें ये है कि जब इनकम टैक्स डिमांड मेरा असेसमेंट ऑर्डर में मैंने ऑलरेडी टेक्निकल गैप्स थे और उसने उसको सुना नहीं और मेरे को डिमांड कर दिया 10 करोड़ का, अभी मेरे को अपील करने के लिए मांगा जा रहा है 20%, 2 करोड़, तो मेरा 2 करोड़ देना बनता ही नहीं है। और इस 2 करोड़ के कारण मेरा ये बिजनेस का जो अभी वर्किंग कैपिटल है पूरा खराब हो के मेरा बिजनेस डाउन हो सकता है, तो मैं क्यों दूँ 2 करोड़? तो मैं रिट में जाके पहले ही को स्टे ऑर्डर ले आता हूँ कि नहीं ये तो गलत हुआ, ये टेक्निकल गैप था, ये नोटिस क्वॉश कर देना चाहिए। तो ये सब चीज़ अभी जूनियर लोग को नहीं पता है, तो बट वो भी सीख रहे हैं, सीनियर लोग से मिलते हैं, जानते हैं। तो दीज आर द 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। So, the 3 points that professionals should keep in mind is to covering their technical grounds, to look for writ options as wherever possible, and keep something a track on the notices and the orders that are being passed by the office. Great. Now, now we often see that client comes and always try to negotiate के यहाँ थोड़ी फीस कम कर दो, वहाँ थोड़ी फीस कम दो. So you must have always come across this kind of situation. So how do you tackle this kind of situation? And also, how do you see that you charge premium, and if not premium, at least a fees that जो हमको सही से मिलनी चाहिए for our services? How do you manage that? तो यूजुअली जब भी कोई मेरे पास काफ़ी जूनियर प्रोफेशनल्स भी आते हैं, क्लाइंट्स भी आते हैं अपने अपने केसेस को लेके, तो जब वो आके अपना केस के बारे में डिस्कस करते हैं कि दीज आर द फैक्ट्स एंड दीज आर द नोटिसेस, तो मैं सिंस आई एम इनटू दिस फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स, तो कहीं ना कहीं मुझे कोई ना कोई रेलेवेंस मिल जाता है पुराने केस से। तो मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ कि इस तरह के केसेस को मैंने ऐसे डील किया है पहले और मुझे इस पे ऐसा सक्सेस मिला हुआ है ऑलरेडी पहले। तो जब मैं वो उनको स्टोरी बताता हूँ कि इस केस में इस तरह से आगे क्वेश्चन और पूछा जाएगा और इसमें हम लोग को ऐसे आंसर्स देना है और फिर इस तरह से ऑफिसर को ये पेपर्स चाहिए रहता है, इससे वो सेटिस्फाई हो जाता है। तो जब वो ये स्टोरी सुनते हैं तो देन दे गेट द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस कि इनका तो सब किया हुआ है, तो फिर वो ज़्यादा बार्गेन नहीं करते हैं। फिर वो बोलते हैं ठीक है सर, आपका तो केस समझा हुआ है, आप तो इतने दिन से कर ही रहे हो, तो प्लीज़ आप इसको टेकअप कर लो। बट जो एकदम फ्रेशर हैं, एकदम नए सी हैं, उनके लिए इट्स अ वेरी चैलेंजिंग थिंग, तो उनके लिए टफ हो जाता है। और दूसरा पार्ट ये है कि अब रोहन जी फॉर एग्जांपल मेरे पास आए थे 2024 में केस लेके, तो उनको उनके क्लाइंट का वो केस लेके आया था, तो उनका केस को मैंने बहुत अच्छे से कर दिया था। तब 2025 में फिर से आए, तो अब वो इस बार केस बड़ा था, तो इस बार मैंने हायर फीस चार्ज किया। तो चूंकि ही वॉज अ सेटिस्फाइड क्लाइंट लास्ट टाइम, तो इस बार उन्होंने भी कुछ बार्गेन नहीं किया, उन्होंने कहा "हाँ, ठीक है रजत जी, आप कर दीजिए, आपने तो पिछले बार भी अच्छे से किया था"। तो आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस और आपका ट्रैक रिकॉर्ड पुराना क्या है, ये सब आपको हेल्प करता है टू चार्ज प्रीमियम फीस एंड टू चार्ज गुड फीस फ्रॉम योर क्लाइंट। दैट इज द की। गिव Showing योर your expertise and knowledge on that particular matter will help you. give your best, keep giving your best, and then you can charge whatever is correct. So that is a key mantra for our professional listening, how to charge the right fees and premium fees. So now we talked about showing our expertise, knowledge, experience to client. फिर मैं उसके साइट पे गया, तो मुझे जो देख के ठीक लग रहा है, उसका रिव्यूज अच्छा लग रहा है, तो मैं उसके पास अपॉइंटमेंट करके चला गया। तो वैसे ही सीएस के लिए भी उनका इंटरनेट में होना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। काफ़ी सारे सीएस को मैं जानता हूँ जिनका वेबसाइट नहीं है, जो इंटरनेट में प्रेजेंस ही नहीं है। तो फर्स्ट थिंग इज़ इंटरनेट में प्रेजेंस होना ज़रूरी है। सेकेंड थिंग इज़ आप सोशल मीडिया में एक्टिव रहो। फॉर एग्जांपल लिंक्डइन अकाउंट में आप अपना जो भी अचीवमेंट्स है आपका, फॉर एग्जांपल मैं कोई बड़ा केस जीता लास्ट वीक, तो मैंने उसका ऑर्डर अपलोड किया। तो फिर और प्रोफेशनल्स ने उस ऑर्डर को पढ़ा, कुछ लोगों ने कुछ क्वेश्चन पूछा, कुछ लोगों ने लाइक किया। तो नाउ पीपल आर अवेयर कि इस टाइप के केसेस को आई हैव ऑलरेडी, करते हैं और अच्छे से हैंडल करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी अपना ऑर्डर्स ऑलरेडी लगा चुका है, मैंने लिंक्डइन में ऑलरेडी दे दिया है, तो इतने सारे ऑर्डर्स ऑलरेडी हैं।
फिर मैं कहीं कहीं जा रहा हूँ एज अ स्पीकर, इंस्टीट्यूट मुझे बुला रहा है एज अ स्पीकर कोई सेमिनार्स में, तो वहाँ का मैं अपना कुछ कुछ क्लिप्स लगा रहा हूँ, तो पीपल आर अवेयर कि अगर मैं प्रोफेशनल्स को पढ़ा भी सकता हूँ तो ऑफ कोर्स आई नो द वर्क, देन ओनली आई कैन टीच देम। तो ये आप थोड़ा नेटवर्किंग कर रहे हैं, आप सेमिनार्स में पार्ट ले रहे हैं, आप लिंक्डइन में और अपना ब्लॉगिंग कर रहे हैं, इंटरनेट में आपका प्रेजेंस है। और मैंने जैसे ऑथर, एज अ ऑथर मैंने बुक भी लिखा है, विनिंग इनकम टैक्स लिटिगेशन। तो आपका बुक अवेलेबल है, तो बुक्स के ऊपर भी इतने सारे रिव्यूज हैं इंटरनेट में। तो अगर आप इस तरह से अपना प्रोफेशनल जर्नी लीड करते हो, तो फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मतलब पीपल कैन रिकग्नाइज यू बाय योर वर्क। तो इस तरह से आपको अपना हर तरफ डिजिटल फुटप्रिंट रखना पड़ेगा। पीपल आर नॉट गिविंग द डिजिटल फुटप्रिंट ओनली, दैट इज द थिंग दे आर In लैकिंग। practicing traditionally. या तो आज के ज़माने में हर कोई तो लैपटॉप और कंप्यूटर और ये अपना फ़ोन में सर्च ही कर रहा है। कोई भी अच्छा प्रैक्टिशनर प्रोफेशनल, कोई भी वर्ड ऑफ माउथ से तो काम होता ही है। बट आज के ज़माने में, स्टार्टअप के ज़माने में, जेन ज़ी के ज़माने में, तो सब लोग गूगल कर रहे हैं, चैट जीपीटी से पूछ रहे हैं, वहीं से जो हो रहा है हो रहा है। तो आपको सोशल मीडिया में एक्टिव रहना है और अपना अचीवमेंट शेयर करना है, वरना रोहन जी को कैसे पता चलेगा। कि रजत जी की स्पेशलाइजेशन है। हाँ, मैं इतने सारे ऑर्डर्स, आप लिंक्डइन में, मेरे लिंक्डइन अकाउंट में जाइए, आपको हर तरह के ऑर्डर्स मिल जाएंगे, असेसमेंट लेवल, सीआईटी अपील लेवल, ट्रिब्यूनल लेवल, हाई कोर्ट लेवल, टॉपिक सब पे तरह के पढ़ेंगे। ऑर्डर हर जुडिशियल अथॉरिटी के सामने हर टॉपिक पे मिलेंगे। देन आपके पास लाइब्रेरी है वहाँ पे, तो आपका ऐसी कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि अरे इनका तो इतना केस जीता हुआ दिख रहा है। You have already built an image for yourself. यस, तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। So create a digital footprint, be present on social media platform, and be present where your client is or where your target audience is. This will help you share or showcase your skills and expertise. Share your achievements also. And show your achievements also. Great. So that people can understand how capable you are. Perfect. Yeah, because otherwise they will not come to know what is going on. Correct. Now, again, as a CA, too much emphasis is given to technical skills. So, what professional traits or soft skill other than technical skills are necessary when it comes to tax litigation? इससे हम लोगों को लॉ पता रहता है, इनकम टैक्स हम लोग पढ़ चुके हैं सीए कोर्स में। अब जब एक्स्ट्रा सॉफ्ट स्किल्स का बात आता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको सामने वाले का माइंड समझना। असेसिंग ऑफिसर अपने सबमिशन में क्या पढ़ना चाहता है, कौन सा डॉक्यूमेंट देखना चाहता है, अगर आपको नहीं पता एज अ टैक्स लिटिगेशन मास्टर, देन आपके वो वैसे सबमिशन सबमिट नहीं होंगे और वो कन्विंस नहीं होगा। तो वी वर लकी दैट वी हैव वर्कड इन नॉन फेसलेस एरा, सो वी हैव मेट द ऑफिसर्स। अब आज के जो जनरेशन है वो तो ऑफिसर्स से उनको मिलना भी ज़्यादा नहीं हो पाता है, तो दे डोंट नो। हाँ, दे डोंट नो कि क्या रिक्वायरमेंट है आज के दिन। तो हम लोग मिलते थे, इंटरेक्शन होता था, वो बोलते थे कि आप ये वाला पेपर ऐसे नहीं दिए, तो हम लोग सीखते गए सीखते गए सीखते गए। अब वी नो कि ऑफिसर को क्या पेपर चाहिए, कैसे प्रेजेंट करना है। अब एग्जाम्पल से बात करते हैं कि किसी कोई का स्क्रूटनी हुआ जिसमें कोई बड़ा लोन लिया था उसने ड्यूरिंग द ईयर, तो ऑफिसर यूजुअली क्या करते हैं, जिससे लोन आया उसको एक नोटिस भेजते वेरीफाई करने के लिए कि आप पेपर्स प्रोवाइड करो, आपका सोर्स ऑफ लोन क्या है, अपना बैंक स्टेटमेंट दो, कंफर्मेशन दो, सब दो। तो मेरे को पता है वो करने वाला ऑफिसर, तो मैं खुद ही लोन ट्रेडर को कम्युनिकेशन भेज देता हूँ असेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उससे कंफर्मेशन लेकर ऑफिसर को सबमिट कर देता हूँ। तो वो उसका काम रिड्यूस हो जाता है, उसका बर्डन रिड्यूस हो जाता है। अब वो उतना सारा पेपर उसको जब मिल जाता है, तो वो उसके बेसिस पे कितना बार ऑर्डर रिलीज कर देता है। Hmm. तो आप ऑफिसर को हेल्प कर रहे हो, उसको जो चाहिए आप पहले ही पेपर प्रोवाइड कर दिए हो। तो इस तरह का सॉफ्ट स्किल्स, अगर आप इस तरह का अपना वे ऑफ अप्रोच रखोगे लिटिगेशन में, तो then थिंग्स बिकम वेरी इजी फॉर यू।
तो ये लोगों को अभी पता नहीं, जूनियर्स को पता नहीं, वो ध्यान नहीं देते हैं इस तरह। तो विथ एक्सपीरियंस दे विल लर्न दिस। उनका कोई गलती नहीं है, एक्सपीरियंस से हम लोग ने सीखा है, वो भी एक्सपीरियंस से सीख जाएंगे। तो ये मैं तो आगे आगे बढ़ के बोल दे रहा हूँ आपके शो में। तो दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर देम कि ऑफिसर्स को क्या चाहिए, जो पेपर्स चाहिए आप Understand their अवॉइड मत mindset. करो। कभी So कभी I think I have seen this particular thing कि जहाँ पे प्रोफेशनल कहते हैं यार हमने तो सब दे दिया है, अभी उनको जो करना है करे। दैट इज नॉट द यहाँ पे करेक्ट माइंडसेट। हाँ, यहाँ पे आप कहना चाह रहे हो यू अंडरस्टैंड व्हाट ही वांट्स, गिव हिम व्हाट ही वांट्स सो दैट ही कैन गिव यू व्हाट यू वांट। उसको जब तक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, जब तक सारा पेपर किसी इसके और गायब नहीं किया आएगा, तब तक वो फेवरेबल ऑर्डर नहीं देगा। करेक्ट। तो आप शॉर्टकट अप्रोच मत अपनाओ, आप बेस्ट अप्रोच अपनाओ। हम्म, डू व्हाट इज राइट। यस। ओके, तो यहाँ कहीं एक क्वेश्चन और आ रहा है, व्हाट इज समथिंग दैट सेपरेट्स अ गुड प्रोफेशनल फ्रॉम अ ग्रेट वन। तो इसके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो ग्रेट प्रोफेशनल्स होते हैं, वो क्लाइंट का भला सबसे पहले देखते हैं कि क्लाइंट को कैसे बेनिफिट हो सकता है। और जो गुड प्रोफेशनल्स होते हैं, वो पहले ये भी चेक कर लेते हैं कि क्लाइंट का भला के साथ साथ मेरा कितना भला कैसे हो रहा है, वो भी देख लेते हैं। तो मेरा बोलना इसमें ये है कि आप अगर क्लाइंट का भला कर रहे हो और अपना बेस्ट एफर्ट दे रहे हो, अगर क्लाइंट का भला होगा तो ऑफ कोर्स क्लाइंट इतना समझदार है कि उसको भी क्या करना है, उसको ही हैज टू लिसन टू यू आफ्टर दैट। वो आज जब आप उसको टैक्स बचा देते हो 50 लाख का, उसके बाद अगर आप 2 लाख का फीस मांगते हो, तो कोई क्लाइंट मना नहीं करता है। बट आप वैसे मत चलो कि पहले फीस फिर मैं बताऊंगा टैक्स बचेगा कि नहीं बचेगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। तो दिस इज द डिफरेंस व्हाट आई फील। आमिर खान ने कहा था काबिल बनो कामयाबी पीछे आएगी, एंड रजत जी कह रहे क्लाइंट का सोचो आपका भला खुद हो जाएगा। सेम चीज अभी आप रिसेंटली अभी एलन मस्क ने फिर से सेम बात बोला है कि थिंक फॉर आप व्हाट योर क्लाइंट वांट। फिर आप अपने आप ही यू विल गेट गुड, यू विल अचीव ग्रेट थिंग्स इन लाइफ। तो सेम बात बार बार रिपीट हो रहा है। So earlier we talked okay, how much reliance should businessmen put on AI. Now the question is how much reliance should professionals put on AI in their practice? देखिए हम लोग अगर इनकम टैक्स लिटिगेशन में बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ नोटिस वी आर प्रिपेयरिंग रिप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द केस एंड वी आर गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम द केस लॉज। तो ये सब जब हम लोग कंपाइल करते हैं, उसके बाद वो कंपाइलेशन को आप एआई में आप थ्रो करते हो एंड नॉट शेयरिंग द क्लाइंट नेम। एंड आप जब डेटा उसको थ्रो करके बोलते हो कि दीज आर द फैक्ट्स एंड दीज आर माय रिप्लाई एंड दिस इज द नोटिस, तो वो उसके बाद तो आपको अपने तरफ से आपका रिप्लाई को इम्प्रोवाइज करता है और आपको कुछ कुछ नए नए पॉइंट्स बताता है, कुछ कुछ नए नए कॉन्सेप्ट्स बताता है, जो इवन आफ्टर 20 years ऑफ प्रैक्टिस आई फील कि हाँ ये कुछ कुछ पॉइंट कहीं कहीं पे मुझे इम्प्रूव कर रहा है। तो आज के दिन में एआई का हेल्प जो नहीं ले रहा है, वो बहुत पीछे रह जाएगा, और जो एआई का हेल्प ले रहा है वो बहुत आगे निकल जाएगा और उसका स्पीड ऑफ वर्क भी बेटर हो जाएगा। चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, जेमिनाई, ये सब जितने भी ऐप्स हैं मैं सबको यूज़ कर रहा हूँ, और सबका पेड वर्जन ही यूज़ करना है, क्योंकि बेसिक प्लान में उतना अच्छा आउटपुट नहीं आ रहा है। तो बीइंग अ प्रोफेशनल, कभी कभी मैं सुनता हूँ प्रोफेशनल से कि नहीं ये 2000 पर मंथ का ऐप मैं नहीं यूज़ करना चाहता हूँ। तो आप वैसे मत सोचो, आप 2000 पर मंथ आराम से स्पेंड करो, देखो आपको उसका बेनिफिट 2 लाख या 3 लाख में मिनिमम मिलेगा। आपका अगर कोई ऑफिस में कोई जूनियर स्टाफ को आप देते हो 20,000 पर मंथ, उससे बेटर परफॉर्म करता है 2000 पर मंथ का चैट जीपीटी और एआई। तो आप नहीं यूज़ करे हो तो आप प्लीज़ यूज़ करो एंड यू विल सी द डिफरेंस। So it's a must. उसके बिना तो वही वाला बात है कि बिना कंप्यूटर के हम लोग नहीं रह सकते।
वैसे ही अब बिना एआई के नहीं रह पाएंगे विद इन फ्यू मंथ्स। Next decade or next coming years are of AI. देखिए तो आप बहुत बड़ा समय बोल दिए। आई थिंक जो एआई नहीं सीखेगा उसको एआई इलिटरेट माना जाएगा, उसको इलिटरेट माना जाएगा। आपके पास सीए की डिग्री, आपको एआई नहीं आता तो भी आपको इलिटरेट माना जाएगा अगर आप एआई नहीं सीखेंगे। तो सारे प्रोफेशनल्स को यही सीखना ही पड़ेगा। और मैं रिकमेंड करूँगा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने एआई का कोर्स निकाला है, मैंने वो कोर्स भी किया है। तो वो कोर्स इज़ अ एक्सेलेंट कोर्स। अब उसका लेवल 2 आने वाला है, मैं वो भी करूँगा, नेक्स्ट ईयर आ जाएगा वो जनवरी फरवरी में। तो आप ये कोर्स ज़रूर करो, तो आपको अपने प्रोफेशन में बहुत हेल्प मिलने वाला है। So again, for all the professionals out there, if you have already started, great. If not, today is the day when you start learning AI for your professional health. Moving on, we talked about AI, we talked about technical skill, we talked about soft skill. Are there any specific tools जो आप regularly use करते हो and you recommend our listeners to use on regular basis? जैसे कि जैसे इनकम टैक्स लिटिगेशन में बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज है, तो वन ऑफ द रिसोर्सेज टैक्समैन। Correct. तो टैक्समैन का ऐप है आपके मोबाइल पे, आप डाउनलोड कर लो, अपने सिस्टम में डैशबोर्ड में रख सकते हो। तो उसमें सारे सारे नए लेटेस्ट केस लॉज आ जाते हैं। जैसे आपके फेसबुक में और इंस्टाग्राम में स्टोरीज आते हैं, वैसे टैक्समैन के ऐप में भी रोज के नए नए ऑर्डर्स आ जाते हैं। Oh. तो उसमें उसमें आप ऑर्डर का छोटा सा एक पार्ट पढ़ के डिसाइड कर सकते हो कि आपको अगर बोरिंग लग रहा है तो आप नेक्स्ट ऑर्डर पे चले जाओ, और फिर जो ऑर्डर इंटरेस्टिंग लग रहा है उसको पूरा पढ़ो। जैसे मैं तो ऐसे ही करता हूँ, एक दिन में अगर 20 ऑर्डर्स आए हैं अलग अलग, कोई ट्रिब्यूनल के, कोई हाई कोर्ट के, तो मैं उसका ब्रीफ पढ़ता हूँ ऑर्डर का, जो टॉप ब्रीफ रहता है 2-3 लाइंस का, फिर जो इंटरेस्टिंग लगता है मैं उसको पूरा पढ़ लेता हूँ एज अ स्टोरी बुक। तो वो बहुत यूज़फुल ऐप्स है। फिर आपका नोटिस अलर्ट ऐप, मैंने आपको बोला ही था कि इट्स अ मस्ट फॉर एवरी प्रोफेशनल, क्योंकि अगर नोटिस ही मिस हो गया तो फिर आप काम ही कैसे करोगे। और ये जितने भी एआई ऐप्स है, ये आपका जेमिनाई है, चैट जीपीटी है और ये परप्लेक्सिटी है, सबका अपना अपना बेनिफिट्स है। तो ये सारा ऐप्स को कैसे यूज़ करना है उसके लिए आप एआई का कोर्स कर लो, वरना आप मैक्सिमाइज नहीं कर सकते बेनिफिट्स को। मतलब चैट जीपीटी में अगर आप बात करें तो देयर इज अ डीप रिसर्च का ऑप्शन, देयर इज अभी न्यू ऑप्शन आया है शॉपिंग का ऑप्शन। मतलब वहाँ एक एजेंट मोड है, आप They're एजेंट, improvising on daily basis. You need to be up. हाँ, आप वहाँ एजेंट मोड है, वहाँ एजेंट को आप बोल दो कि शेड्यूल मीटिंग कॉल विथ मिस्टर रोहन मेहता फॉर टुमारो 8 PM, ऑर्गेनाइज अ जूम कॉल। वो मेल वेल भेज देगा आपको, जूम के लिए सब कुछ कर देगा बस कि इज योर पर्सनल असिस्टेंट। तो ये सब में अभी बहुत ऑप्शंस हैं, और ये सब हम लोग को वी हैव टू बी लिटरेट इनफ टू हैंडल दिस एआई, अदरवाइज वी विल बिकम redundant if you don't know how to use AI. That's it from my side. Ah, Rajat ji, that was an insightful and refreshing conversation. Thank you so much for breaking down the tax litigation world in a very clarity and with the most practical approach that we could have. Thank you. Now, for all our listeners, we have a surprise for you. As we have already mentioned, Rajat ji is an author of a book, Winning Income Tax Litigation. Now, we are giving 5 free copy of his book for people. To win this book, all you need to do is comment "Let's get lucky" in the comment section, and we will choose 5 members from all who have commented who will be gifted this book. And for those unlucky people who could not win this book, we will share Amazon link of this book from where you can go and purchase this book. So, to all our listeners, remember, litigation does not have to be painful and give you sleepless night. Approach it right, take help of right consultant,
and you will handle them with a smile on your face. And for all our professionals out there, you have got a lot of things to learn. And for all our professionals out there, remember keeping yourself updated, ethical learning, and marketing. These things will keep you on the top of your practices and help you grow. If you enjoy our episode, don't forget to subscribe for our channel to listen to more such episodes where we will talk about finance and tax and we'll try to explain it in more clarity and practical manner. Thank you for listening to us and we'll see you in the next episode. Thank you.